So our आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिक्योरिटी पॉलिसी एंड सेकंड इज email security. So first that is introduction about the computer security policies. So basically security हम लोगों ने लगानी क्यों है? Security आप लोग लगा रहे हो अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। सिक्योर करने के लिए कहाँ से? अनऑथराइज एक्सेस के लिए, कि जो अनऑथराइजेशन है वो आपके सिस्टम के ऊपर अटैक ना कर पाए। आप उनसे कैसे हम लोगों ने प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। So first there is a definition of computer security policy. So computer security policy is a statement of responsible decision maker. Responsible decision maker about the protection mechanism of a particular company, the crucial physical and information assets. So overall it is a document that describes a company security controls and different activities. So security policy does not specify a technology solution. Instead of the specific sets of intentions and the conditions that will aid to protect assets along with the propensity of to organize business. So in more depth, a security policy is a primary way in which administrator, we can say that prospect for security and translated into the specific measurable goals. So as well as the direct user to build, install and maintain the system. So they do not have to make those decisions by themselves. So finally, it should be in written form of the offer guidance about what kind of behavior resources used are required in acceptable formats, employees, and moreover about what is forbidden to we can say that wild. So in that case, our first question arises, that is, what is computer security? So computer security is the protection of computing system and that data is stored to store and or access. कि जो डेटा आप लोग स्टोर कर रहे हो और जो डेटा आप लोगों ने एक्सेस करना है, ठीक है, उसके ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। सिक्योरिटी किस तरीके की? ये ना हो कि जो डेटा आप लोगों ने अपलोड किया है या जो डेटा आप लोगों ने एंटर किया है उस डेटा के ऊपर कोई भी अनऑथराइजेशन एक्सेस कर पाए, अनऑथराइजेशन एक्सेस कर पाए और उसको डेटा को कोई डिलीट ना कर पाए, ठीक है, कोई ओवरराइट ना कर पाए। So why is, so second question in that case, that is, why is computer security important? क्यों important है? So in that case, computer security that allows different perspective. So first we can say that enabling people to carry out their jobs, whether it is education or whether it is a research. So in that second, that is supporting critical business process. And third, that is protecting personal and sensitive information. ठीक है, कोई भी पर्सनल डेटा है, सपोज अगर हम लोग अपने गूगल फॉर्म पे आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करवाते हैं, तो ये नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड किए हैं वो किसी दूसरे को भी विजिबल रहे। अगर किसी दूसरे के पास भी विजिबल रहे, दैट मींस देयर इज अ लेस सिक्योरिटी ओवर देयर। अगर लेस सिक्योरिटी रहेगी तो एनीबडी कैन डिलीट दैट फाइल, कोई भी उसको डिलीट कर सकता है, अपेंड कर सकता है। सो दैट इज व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द डेटा, whether the data is stored in the particular device or that whether the data is stored in a particular cloud. So third question, that is, why do I need to learn about the computer security? So in that case, so there are some different standards in the case of computer security. So likely we are divided into two categories, whether it is 90-10 rules. 90-10 rules, or we can say that 90% or 10%. So when we are talking about the 10%, that the security is safeguard and technicals. When we are talking about the 90% security, so 90% of the security safeguard that rely on the computer users like you people, and
उसको providing the practice, good practice over the network. So example, if we are taking the example in the case of 10%, so that is a log, जो आप लोग अपने घर के बाहर log लगाते हो, that is the 10%. So you remembering the log, so changing to see if the door is closed, ensure other do not properly door open. So keeping control of the keys etc. is the 90%. ये नहीं है कि आप लोगों ने सिंपली लॉक लगा दिया और लॉक के साथ ही आप लोगों ने की रख दी। अगर सिंपली लॉक के साथ ही आपने की रख दी, दैट मींस आपने सिर्फ अपने आप को 10% सिक्योर किया है लॉक लगा के, ठीक है। जो 90% सिक्योरिटी थी जो आपने की थी वो ऑलरेडी वहीं पे रख दी। तो 10% इज टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी दैट लाइक घर के बाहर लॉक लगा रहे हो, सो 90% इज टू सेव द की। So next we have the policy makers. So policy makers, अगर हम लोग इसको define करें, policy maker क्या चीज है? So policy, security policy that develop is a joint or we can say that collective operations. Collective operation of all entities of an organization that is affected by its rules. In general, security policy should not be developed by IT team itself, as it is a responsible of everyone that has a stake in a security policy that should be involved in its we can say that the development, so that they can they could mold the policy according to their requirement. तो ये नहीं कि जैसे ही आप लोगों को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसको मोल्ड भी कर सकते हो। सो ड्यूरिंग पॉलिसी क्रिएटिंग फॉलोइंग एंटिटीज typically that involves, so first in that case that is board. So board, that means company board members must render their advice to some form of a review of policies in response to exceptional or abnormal running conditions of the business. So जो board members हैं वो ही policy makers हैं, वो ही policy देखेंगे कि किस तरीके से policy को change करना है if required. Otherwise जो policies अगर नहीं बनानी है तो कैसे policy बनानी है, ठीक है। Second that is IT team. So IT team members usually are the biggest consumer of the policy information in any company, as it involves making standard around the different stages or around the uses of the computer system. So especially security control. So that means पूरी IT team आपके साथ लगी होती है security लगाने के लिए। IT team means किस type की security किस data के ऊपर लगानी, because हर एक डेटा के ऊपर आप हर टाइप की सिक्योरिटी नहीं लगा सकते। जैसे आप गूगल पे भी कोई चीज सर्च करते हो तो कुछ वेबसाइट्स हैं जो प्रोवाइड करती हैं कि आप डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो डेटा को कॉपी भी नहीं करने देती। तो दैट मींस उन लोगों ने डेटा के ऊपर सिक्योरिटी लगाई है, नोबडी कैन कॉपी डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। सो थर्ड वन दैट इज लीगल टीम। So this team that ensure the legal points in the document and the guide a particular point or जो भी आपके legal points रहेंगे। legal points यदि अगर कुछ अगर हम बात करते हैं तो sometimes कुछ companies जो हैं वो bond sign करवाती हैं, कुछ bond sign करवाती हैं 1 year, कुछ bond sign करवाती हैं 2 year. So these are the other legal teams कि अगर कोई between इंटर्नशिप, सपोज आप कहीं पे इंटर्नशिप अप्लाई करते हो तो आपको कहते हैं कि इंटर्नशिप के फर्स्ट 2 मंथ्स जो है उसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जो फ्रॉम 3rd मंथ टू ऑनवर्ड आप लोगों को इंटर्नशिप मिलना स्टार्ट होगा। तो वो भी क्या आपके एक लीगल टीम जो है वो डिसाइड करती है कि कब से आपको स्टार्ट करना है। तो उसमें ये भी लिखा होता है कि अगर आप ड्यूरिंग इंटर्नशिप छूट गए जाते हो तो यू हैव टू पे दिस अमाउंट। अगर आप ड्यूरिंग जॉब हो, ड्यूरिंग जॉब आपके ड्यूरिंग
प्रोबेशन पीरियड है, तो प्रोबेशन पीरियड में आपको बताया था कि अगर ड्यूरिंग दिस प्रोबेशन पीरियड अगर आप कहीं पे भी छोड़ के जाते हो तो यू हैव टू पे दिस अमाउंट। तो वो सारा कौन हैंडल कर रहे हैं? आपके कंपनीज की लीगल टीम्स। एंड नेक्स्ट वन दैट इज एचआर टीम। सो एचआर टीम का क्या रोल रहेगा? एचआर टीम दैट टिपिकली अबाउट दी सर्टेन terms and conditions that certify for each employee that they can read and understood the different policies as the HR team deals with rewards and punishment related issues of employers to implement the disciplines. अब एचआर टीम का क्या रोल रहेगा? अगर आप बात करते हैं एचआर टीम का रोल यही है कि उसने आपको सर्टिफिकेट देने हैं। सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने ये चीज पास कर ली। सर्टिफिकेट का इस केस में मतलब ये है कि आप लोगों को एप्रिसिएशन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, कि आपकी सैलरी के अंदर आपको कुछ इंसेंटिव मिल रहा है, ठीक है। तो वो जो डिसाइड होगा वो डिसाइड कौन करेगा? एचआर टीम आपकी डिसाइड करेगी कि हाँ भाई इस बंदे ने जो प्रोजेक्ट इसको मिला था विद इन टाइम स्लॉट इसने कंप्लीट कर दिया तो इसको इतना रिवॉर्ड मिलेगा। सम टाइम आप लोगों ने मे बी दुनिया के रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हो गए किसी कंपनी में, सम टाइम उनको कोई ना कोई ट्रिप स्पॉन्सर रहता है, ठीक है। तो वो भी कहता है बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस कि आपकी कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस कैसी है। और सम टाइम कईयों को फायर भी किया जाता है बेस्ड अपॉन द अगेन बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेस पे इंसेंटिव मिल रहा है तो परफॉर्मेंस के बेस पे पनिशमेंट्स भी है। ओके, इट मींस अगर कंपनी से रिवॉर्ड दे रही है तो कंपनी जो है वो पनिशमेंट भी देती है। पनिशमेंट में पनिशमेंट सब टाइम ऐसी भी होती है कि अगर ड्यूरिंग जॉब, अगर ड्यूरिंग वर्किंग आवर, अगर हम ऑफलाइन की बात करते हैं तो ड्यूरिंग वर्किंग आवर अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो यू हैव टू पंच योर कार्ड। इस सब जगह पे जो है एंट्री जो है दैट बेस्ड अपॉन योर आईडीज, वेदर वो आपका आई कार्ड है या वेदर वो आपका थंब इम्प्रेशन है या कोई भी बायोमेट्रिक किसी भी। दिस इज द मेन रोल ऑफ एचआर। So next we have security policy development approach following different stages. So in that case, first stage that is first discover and visualize. When we are talking about the discover and visualize, that is the first stage that uh, involves creating an accurate real-time map of application connectivity and the network topology that across the entire organization. In that case, the different things are included, including on data, where you want to store the data, whether it is cloud and software defined software environments. So without this information, IT staff are especially working blind and will inevitable make mistakes and encounter problems down the line. So that means आप लोगों ने जो डिस्कवर करना है उसके लिए आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए। सेकेंड इज
Yes. So once there is a clear picture of applications, connectivity and the network infrastructure, इस केस में आपको एक बार क्लियर हो गया कि आप लोगों ने क्या बनाना है एक्चुअली फर्स्ट केस में आपने एक छोटा सा ब्लूप्रिंट बन जाता है कि आप लोगों ने जो बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर की है, यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज जो आपका फर्स्ट स्टेज है दैट इज जस्ट गैदरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर, इंफॉर्मेशन गैदर की, इकट्ठी की, क्या चाहता है वो उस चीज के लिए। तो सेकंड जो है दैट इज उस चीजों के क्या कहता है स्टार्ट द प्लान चेंजिंग फॉर इफेक्टिवनेस। सो इंश्योर दैट proposed changes will provide the required connectivity. So in that case, while minimizing a risk to introduce किस चीज के लिए बचने के लिए that vulnerability attacks that causing the different application out different applications or compliance violence. So third, that is migrate and deploy. So deploying connectivity and security rules can be a labor incentive and error prone process. So security policy management solution that automate the critical risk that involves, including designing the rules, changes intelligently, the automatically migration rules. So automation migration rules and pushing policies to firewall and other security devices. So all with zero touch if no problem or exceptions are detected. So if अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की उसको कहीं ना कहीं उसको सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है, और सॉर्ट आउट किया जाए और प्रॉपर्ली इसको करेक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए। सो फोर्थ दैट इज मेंटेन। सो मोस्ट फायरवॉल accumulate thousands of rules which become outdated or absolute over the system. So bloated rule sets not only add complexity to daily tasks such as change management, troubleshooting, and auditing. So they can also impact the performance of the firewall applications. So the resulting is decreasing hardware lifespan and increased different concepts. So cleaning up and optimizing security, different policies on a ongoing basis can prevent क्या prevent करेंगे वो इन rules को. So that rule this includes the identifying and eliminating or consolidating redundant and conflicting rules. So next is decommission. So next one is decommission. That is every business application eventually different reach the end of its life. So but when they are decomposed, their security policies are often left in place. So either by oversighting or from fear that removing policy that should negative affect active business applications. So these absolute or redundant security policies that increase the enterprise attacks and surface and add bold to the firewall rule sets. So next we have so basic फंडा क्या है जो सिक्योरिटी पॉलिसीज को डिफरेंट अप्रोचेस को डिफरेंट स्टेजेस को अप्लाई करने का। उस केस में यही है कि जो भी स्टार्ट फ्रॉम हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि पहले डेटा इकट्ठा करना है, क्रिएट करना है, एक्यूरेट करना है, जो फर्स्ट स्टेज रहेगी, देन रियल टाइम मैप क्रिएट करना है कि एग्जैक्टली वो चाहते हैं क्या है, देन उसके रिलेटेड प्लान चलेगा। सेम एज अगर हम इसको कंसर्न करते हैं या
कोरिलेट करते हैं स्टेजेस को, तो इट इज कोरिलेटेड विद आवर SDLC मॉडल. So next we have the different rules of the security policies in setting up the protocols. So before the start of this topic, I'm going to launch the first pool question. Now I'm going to launch the pool. So hurry up, students. And I'm going to share the result. What is the correct answer for first question? That is unexpected. First question, that is unexpectedly you get an email from a college who requests you to urgently click on an email link which they have sent you. So what is the safest options? So in that case, first a part, that is a link is from a known person, therefore it is a safe to open. So it is an incorrect answer, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने ही फिशिंग अटैक किया था. तो फिशिंग अटैक के अंदर आप लोगों ने डिफरेंट लिंक क्रिएट किए थे, तो जिस केस में आप लोग किसी को भी क्रिएट करके सेंड कर सकते हो कोई भी फेक लिंक. So second option, that is if the link was malicious and organized firewall would have flagged or blocked it. So therefore it's safe to open. तो इतनी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कोई भी फायरवॉल जो है उसको ब्लॉक नहीं कर पाएगी, वो मेल आपको सेंड हो ही जाएगी. क्योंकि सम टाइम आपको पता है कि जो फायरवॉल्स हैं या स्पैम में चली जाती है कुछ मेल्स, तो वो दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द मेल. So third option, that is reply to the sender to double click. If the link is saved to open as they might have sent it as accidentally. तो वो भी आपका गलत रहेगा. So correct answer for first question, that is do not click the link, phone the sender for verification. आप वेरीफाई करने के लिए डायरेक्टली उसको कॉल भी कर सकते हैं, आपको लिंक पे क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है. मे बी आप लिंक पे क्लिक करे हो, उसके अंदर वो आपका की लॉगर कोई हो, तो हिडन की लॉगर आपके सिस्टम के अंदर वो इंस्टॉल हो जाए. So second question is what is one thing Trojan does. Trojan करता क्या है आपका? So वो आपको protect your computer from advertisement. ये आंसर किसने किसने टिक किया था? Just raise your hand. Honestly, just raise your hand जिन लोगों ने ये टिक किया है. क्योंकि ट्रोजन आप लोगों को आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है. सो करेक्ट आंसर फॉर दैट इज लॉग्स योर की स्ट्रोक्स. क्योंकि ट्रोजन का काम यही है कि आपके सिस्टम पे हिडन इंस्टॉल हो जाना, लाइक की लॉगर. तो आपके सिस्टम की जितनी भी की स्ट्रोक्स हैं उन सबके लॉग रिकॉर्ड बना के समटाइम थ्रू ईमेल और समटाइम विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव वो आपके पास स्टोर करता रहेगा. Okay, now I'm going to stop sharing the result. So next topic is rule of the security policy in setting up the protocol. Just tell me what is protocol. Yes, Gagan. It is basically a common language which can sender and receiver both can understand. ठीक है. Yes, Anchal. Yes, Anchal. Yes, sir. It is basically a formal language which both the sender and receiver understands, or we can say that it is a set of instructions which both understands. बिल्कुल ठीक है. जो आपकी अगर हम बुकिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो बुकिश लैंग्वेज में आप लोग यही पढ़ते हो, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स.
correct answer is correct, set of rules, but what type of rules के both side जो communication रहे, both side communication वो जो है वो understandable रहे। रूल मीन्स कोई प्रोटोकॉल मीन्स कुछ सेट कर देना, दोनों के बीच में कोई रूल सेट कर देना कि कहाँ जो वो दोनों उस चीज को समझ पाए। कम्युनिकेशन कोई हो रही है तो वो अंडरस्टैंडेबल कम्युनिकेशन है, दैट इज द मेन मोटिव टू असाइन द पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग रूल्स कह रहे हैं। सो देयर आर some pointers which helps in setting you protocols for the security policy of an organization. So first question in that case we raise first question. Is who should access the system? हमने ये लगा दिया है कि जो प्रोटोकॉल सेट करने का जो है वो should have access to the system, कि सिस्टम के पास यूज करने का किसको एक्सेस देना है आप लोगों ने। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट दैट इज how it should be configured, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ठीक है, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। थर्ड वन दैट इज how to communicate with थर्ड पार्टीज और सिस्टम। आप लोगों ने कौन कम्युनिकेशन करेगा, जो थर्ड पार्टी रहेंगे और सिस्टम। थर्ड पार्टीज में वेदर वो थर्ड पार्टी जो है आपके वेंडर्स रहे, वेदर वो थर्ड पार्टी जो है आपके यूजर्स रहे, ठीक है। सो दिस इज द रोल ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज इन सेटिंग अप द प्रोटोकॉल्स। कौन प्रोटोकॉल जो है वो सेट करेगा। सो नाउ पॉलिसीज आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। सो दीस आर द रूल्स जो आपकी स्क्रीन पे ऊपर विजिबल है, but there are two different types, two categories of policies. First, that is user policy and IT policies. These are the two categories of policies. So first, when we are talking about the user policy, so user policy generally defines the limit of the users toward the computer resources in a workplace. So for example, what are they allowed to install in their computer, and if they can use removable storage, and the IT policies. So IT policies, so when we are talking about the IT policies, are basically designed for IT department to ensure the procedure and functions of IT fields. So next we are having different rules. That is, first is journal policies. Journal policies. So this is a policy which defines the rights of the staff and access level to the system. कि जो स्टाफ रहेगा उनके क्या राइट्स हैं, क्या राइट्स रहेंगे, किस चीज को, किस टाइप की, किस यूजर को, सॉरी किस एम्प्लॉय को किस टाइप का एक्सेस रहेगा। एक्सेस रहेगा वो हमने पहले भी डिस्कस किया, वेदर आप लोग उसको एक्सेस दे रहे हो फुल एक्सेस, लाइक जिसमें रीड राइट अपेंड सब रहेगा। तो समटाइम कंपनीज के अंदर ये भी रहता है कि आप लोगों को जो है एक लिमिटेड, समटाइम बैंडविड्थ भी लिमिटेड होती है, इतनी बैंडविड्थ ही आपको मिलेगी और इतना ही डेटा आपको मिल रहा है। समटाइम्स कुछ कंपनीज में ऐसा होता है, अदरवाइज जो है वो एक्सेस लेवल ही रहता है कि आप उस ड्राइव को एक्सेस करने की प्रिविलेजेस कैसी हैं आपके पास, ठीक है। सेकेंड इज
सर्वर पॉलिसीज. So server policies क्या define करती है? This defines who should have access to the specific server and with what rights. जो सर्वर को एक्सेस कर रहा है, जरूरी नहीं है कि सर्वर को सिर्फ एक ही बंदा एक्सेस कर सके. There are more than one. तो एक से ज्यादा लोग भी सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं. तो जब ये भी जरूरी नहीं है कि अगर एक से ज्यादा लोग सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं या 4 कर रहे हैं कि चारों के पास सेम राइट्स नहीं है, सेम एक्सेस लेवल रहेगा. सो एक्सेस लेवल जो रहेगा वो डिफरेंट भी हो सकता है. एक्सेस लेवल डिफरेंट हो सकता है. सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल्ड एंड लेवल ऑफ एक्सेस टू द इंटरनेट, how they should be updated. So this is a part of server policies. And third one, that is firewall access and configuration policies. So basically it defines who should have access to the firewall and what type of the access, like monitoring and rules changes. So which ports and services should be allowed, and if it should be inbound or outbound. So that is the rule of firewall access and configuration policy. So fourth one, that is backup policies. So backup policies basically it defines who is the responsible person for backup and what should be the backup and what where it should be backup down. So how long it should be kept and the frequency of the backup. कि जो भी डेटा का बैकअप रहेगा वो डेटा की कुछ कोई भी टाइप हो सकती है, किसी भी चीज की बैकअप कि जो सर्वर पे कोई एक्सेस कर रहा है कि वो किस टाइप पे एक्सेस कर रहा है, वो कितना एक्सेस कर रहा है, वो हर चीज उस केस में आ जाएगी. ठीक है, कि डेटा का बैकअप कैसे ले रहे हैं. लाइक जैसे आप लोग ऑनलाइन पेपर देते हो सब टाइम, उसका बैकअप कैसे ले रहा है, किस टाइम पे. जैसे आप लोगों को पता है कि कुछ आपके लिए टाइम स्लॉट होता है कि विद इन दिस टाइम स्लॉट यू हैव टू सबमिट योर पेपर. तो उसका बैकअप कैसे ले रहा है कि उतने टाइम पे ही पेपर आपका रिसीव होना चाहिए, उसके बाद जो है वो एक्सेस आपके लिए डिनाई कर दी है. तो हु इज द रिस्पांसिबल फॉर द बैकअप पॉलिसीज. So first one is VPN policies. Can anyone just explain what is VPN? I'm not talking about the full form of the VPN. Just tell me the definition of VPN. Yes, Karan. It basically hides the IP address of the sender or creating a secure tunnel through which they can exchange the data. ठीक है. Okay. Anyone else? कोई और इसको डिफाइन करना चाहे. यस अभिषेक महाजन. यस आंचल. Sir, it basically creates the tunnel between 2 or more devices. ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है. क्रिएट्स अ टनल. यस यस आंचल. Sir, question repeat करना, मेरा network issue था. ओके, जस्ट वेट करो एक सेकंड. यस कार्तिक. सर ये बेसिकली सिक्योर कनेक्शन बनाता है हमारे बीच और इंटरनेट के साथ. ठीक है. यस अभिषेक. ठीक है कार्तिक. यस यस सर. बताइए. क्वेश्चन रिपीट करना सर, वो आज कट रही सर. मेरा नेट सर लाइट गई हुई है, नेट से चला रहा हूँ. ओके, सो क्वेश्चन जिन लोगों ने नहीं सुना फिर भी सुन लो. यस अंजलि, तब तक आप बता दें. Yes. Sir, it basically hides our IP address, so our online access are virtually untraceable. अच्छा सर, आप VPN में पूछ रहे हो. VPN policy. सर VPN में तो होता है ना सर, it creates a tunnel like we can access some information which is
which is being abandoned to us, which cannot be accessed by us at some place. So हम VPN connect करके सर उस information को access कर सकते हैं without doing some spoofing and all. ठीक है, ये Sajal, Mittal. Yes, sir. We can say that it basically protects our activity just by encrypting that particular data in such a way that our ID is basically hidden so that no one on the internet can get our ID. So when connected to internet, it basically hides the ID of the particular user. आप सब सिर्फ डेटा को हाइड सॉरी आप आईपी को हाइड कर रहे हो, उसके अलावा भी कुछ और होता है कुछ? ये सिद्धि So it is Yes. basically a secure tunnel between our device and internet. ठीक है, टनल भी क्रिएट करता है, ठीक है। यस अभिषेक, यस लवप्रीत। हेलो, यस सर। सर ये पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू एनी कंपनीज के अकॉर्डिंग बतानी है या नॉर्मल इसके जो डेफ अपने देखो, यूज करते हैं? अगर आप कंपनी के अकॉर्डिंग बताओगे रोल तो सेम ही रहेगा, जो वीपीएन का काम आपके लिए है वही काम कंपनी के लिए रहेगा। सर वही होता है, पर सर जैसे कंपनीज खुद का प्राइवेट नेटवर्क बनाती है ना, ठीक है, उनके अंदर जो यानी उसकी उनकी पॉलिसीज की यानी बाहर से कोई उनको एक्सेस अंदर आ सके या ना आ सके, अंदर से कोई बाहर जा सके या ना जा सके, तो वो सब जो पॉलिसीज डिफाइन करते हैं उनके वो उनकी वीपीएन की पॉलिसीज होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई और चलो ठीक है, ऑलमोस्ट जो है सबके जो आंसर हैं वो करेक्ट ही है। वीपीएन है, बेस सबका अलग अलग रहेगा कि जो टनल क्रिएट होती है, टनल क्रिएट करने के बाद जो है आपका आईपी हाइड किया जाता है। अगर हम वीपीएन पॉलिसी लगाते हैं तो हम सिंपली इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक किस्म की पॉलिसीज है जो जनरली गो विद द फायरवॉल पॉलिसी and it defines those users who have VPN access and with that rights. So basically for site to site connection with different partners. So basically it defines the access level of the partner to our network and type of encryption to be set. जो है डेटा है वो अगर वो भी हम लोग encrypt कर रहे हैं, so it is quite जो है आपका जो है डेटा सिक्योर है कि जब भी आप VPN लगाते हो। तो अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं वो आप सबको पता है, दैट इज क्रिएटिंग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिस केस में आप लोग एक टनल बना लेते हैं, टनल बना लेते हैं बिटवीन एंड योर एंड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज, आई एम गोइंग टू वॉच द सेकंड पेज। लॉगिन करके लॉग आउट कर लॉगिन करके Now I'm going to share the result. So correct answer for first question is all of the above. जो डिजिटल सिग्नेचर है वो हर चीज की आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो ऑथेंटिसिटी भी रहती है आपकी, डुप्लीकेसी से भी नहीं रहता, वो इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन भी है कि आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर फॉर दैट इज ऑल ऑफ द अबव। एंड करेक्ट आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन इज आपको कोई भी फ्रॉड की ईमेल आती है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम उसको अटैक की बात करते हैं, सो दैट अटैक इज बेस्ड अपॉन द, अगर हम उसको कहते हैं दैट इज फिशिंग अटैक। सो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फिशिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सिक्योरिटी पॉलिसी। सो व्हेन यू कंपाइल a security policy, you should have in mind a basic structure in order to make something practical. Some of the main points which have to
be taken into considerations are, first in that case, that is description of the policy and what is the uses for. And second, that is where this policy should be applied. And third, that is functions and responsibilities of the employees that are affected by the policies. And the fourth one, that is procedures that are involved in this policy. And the fifth one, that is consequence if the policy is not compatible with the company standards. So next we are having different types of policies. So these are the types of policies. So these are some important types of policies. First is permissive policies. So it is a medium, that is a restricted policy where we as an administrative law, just some well-known codes of malware that regarding internet access and just some exploit are taken in the considerations. The second one, that is prudent policies. So this is high restriction policies where everything is blocked regarding the internet access. Just a small list of websites are allowed, and now extra services are allowed to computers in the computers to be installed, and logs are maintained for every user. तो इस केस में यही रहेगा कि कुछ लिमिटेड वेबसाइट्स ही हैं जिनका एक्सेस रहेगा ओपन होने के लिए, और रेस्ट ऑफ द वेबसाइट जो है वो सारी की सारी ब्लॉक है. थर्ड वन इज एक्सेप्टेंस यूजर पॉलिसी. So this policy regulates the behavior of the users toward a system or network, or we can say that even a web page. So it is explicitly said what a user can do and cannot do in a system, and like are they allowed to share access code, and can they share different resources. And next one, that is user account policy. So this policy that defines what a user should do in order to have or maintain another user to a specific system. For example, accessing an e-commerce web page. So to create this policy, you should answer some questions like, should the password be complex or not? What age should the user have? Maximum allowed tries or fails on login. When the user should be deleted, activated or blocked. Okay, so ये क्वेश्चन जो है जब यूजर अकाउंट आता है तो उसके ऊपर कैसी पॉलिसी आपने लगानी है वो अलग चीज है. कब डिलीट करना है, सब किसको आप लोगों ने एक्टिवेट करना है, कब किसको ब्लॉक करना है. So next policy we have, that is information protection policy. So this policy is to regulate access to information, that how to process information, how to store, and how it should be transferred. कैसे स्टोर करना है, कैसे आप ट्रांसफर करोगे डेटा जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो, इंफॉर्मेशन शेयर कैसे करनी है आप. So next, that is remote access policy. So this policy is mainly for big companies where the user and their branches are outside their headquarters. It tells what should the user access and when they can work and on which software, like वो VPN क्रिएट कर रहा है, वो सिक्योर सॉकेट लेयर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कि रिमोटली आप कैसे एक्सेस करें. क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी एक हमने प्रैक्टिकल भी किया था रिमोट लॉगिन. तो रिमोट लॉगिन के अंदर भी हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर भी किया था. अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, टीम व्यूअर आप लोगों ने यूज किया था. विद द हेल्प ऑफ टीम आपने ऑलरेडी यूज किया. टीम व्यूअर की हेल्प से आप लोग रिमोटली सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो. विंडोज के अंदर भी बाय डिफॉल्ट फीचर है रिमोट डेस्कटॉप का कि आप रिमोटली किसी का भी सिस्टम अपने सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी लोकेशन से कर सकते हैं.
Next, that is firewall management policy. So firewall management policy, this policy has explicitly to do with its management. वो क्या करेगी अब वो मैनेजमेंट, which ports should be blocked, कि कौन सी पोर्ट को जो है वो ब्लॉक करना है, and what update should be taken, and how to make changes in the firewall, and how long should be the logs to be kept, कि कितनी देर तक के आप लोगों ने जो लॉग्स हैं उनको अपने पास संभाल के रखना है. And next act is special access policies. Special access policy, this policy is intended to keep people under control and monitor the special privileges in their system and the purpose as to why they have it. So these employees can be team leader, can be manager, it can be senior manager, it can be system administrator, and such high designation that based upon the people. वो कोई भी हो सकता है जो हाई डेजिग्नेशन कराएगा, जिसके पास एक्स्ट्रा स्पेशल प्रिविलेज रहते हैं, मींस स्पेशल राइट्स रहते हैं, इसके पास ये स्पेशल राइट्स है, ये वाला जो है वो रूल अप्लाई कर सकता है, इसके लिए ये रूल जो है वो मैटर नहीं करता है, ये रूल इसके लिए नहीं है, ठीक है. दीज आर द स्पेशल एक्सेस पॉलिसी. नेक्स्ट दैट इज नेटवर्क पॉलिसी. सो नेटवर्क पॉलिसी, दिस पॉलिसी इज टू restrict the access of anyone towards the network resource and make clear who all will access the network. So it will also ensure whether the person should be authorized or not. So this policy also include other aspects like who will authorize the new device that will conducted with different network. So the documentation of network changes, web filters, the level of the access, and who should have wireless connection, and the type of the authentication, and the validity of the connection session. तो ये सारी चीजें जो है वो नेटवर्क पॉलिसी से रहेंगी. जैसे समटाइम्स आप लोग जो होस्टलर्स हैं उनको पता है कि उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी, टाइम स्लॉट गिवन था कि इतने टाइम से लेके सपोज 9 to 4 आपको कॉलेज वर्किंग है सपोज, तो आप जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज का जो इंटरनेट अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो वो 4 बजे से लेके, जो हॉस्टलर्स हैं 4 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक वो अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं कॉलेज के डोमेन के थ्रू. कॉलेज का अगर आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, या कॉलेज के वाईफाई के थ्रू आप इंटरनेट चला रहे हैं, तो वो क्या चीज आ जाएगी, वो नेटवर्क पॉलिसीज आ जाएगी कि जिसमें डिफाइन कर दिया गया कि जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट का लॉगिन आईडी इस टाइम से लेके इस टाइम तक ही लॉगिन होगा अगर वो इंटरनेट चला रहे हैं तो, ठीक है, अगर वो कॉलेज का इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं. जैसे आपका पेपर हुआ था, एग्जामिनेशन हुए थे, एग्जामिनेशन आपके ऑनलाइन जब हुए थे तो आपको 5 मिनट प्रायर आपका आप लॉगिन करके कर सकते थे, देन यू आर एबल टू अटेम्प्ट योर पेपर. उससे पहले 5 मिनट से पहले आपको मैसेज यही मिलता था कि आपको एक्सेस डिनाइड है, ठीक है, क्योंकि आप कॉलेज का ERP यूज कर रहे थे, कॉलेज का आप IP यूज कर रहे थे. तो IP के ऊपर यही नेटवर्क पॉलिसी लगाई थी कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर है दे कैन ओनली एंटर बिफोर 5 मिनट टू स्टार्ट द एग्जामिनेशन, कि सिर्फ 5 मिनट पहले वो उसको लॉगिन करके उसको एंटर कर सकते हैं. So next that is email usage policy. So this is one of the most important policy that should be done because many users use the work email for personal purpose as well. So as a result, information can leak outside. ये चीज पॉसिबल है अगर आप कोई भी कॉलेज का किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, अगर वो कॉलेज के डोमेन से कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी थ्रेड्स भी पढ़े थे, तो थ्रेड्स के केस में हमारे पास एक थ्रेड था इंटरनल थ्रेड. जो इंटरनल थ्रेड है अगेन इट इज अ टाइप जो है एम्प्लॉय ही इंटरनल थ्रेड है. अगर किसी भी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है
तो अगर कॉलेज की कोई इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है या किसी को पास ऑन कर रहा है तो दैट इज अ काइंड ऑफ इंटरनल थ्रेट. So some of the key points of this policies are the employees that should know the importance of this system and that they have the privileges to use. कि कौन सा डेटा है जो आप लोग शेयर कर सकते हो किसी के साथ, कौन सा डेटा है जो शेयर नहीं कर सकते. So they should not open any attachment that look बात करते हैं तो कोई भी suspicious हो सकता है. ठीक है. So private and confidential data should not be sent via any encrypted email. So this is a main motive to apply the policies over the email use. So last type of policy, that is software security policy. So this policy has to do with the software installed in the user computer and what they should have. Some of the key points of this policies are software of the company should not be given to the third party. ऐसा नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी के एम्प्लॉय को दिया गया है, सपोज सॉफ्टवेयर के एग्जांपल करते हैं लाइक जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं, किसी को लाइसेंस एंटीवायरस दिया गया, लाइसेंस एंटीवायरस दिया गया. अब ये नहीं है कि वो उस एंटीवायरस को अपने पर्सनल सिस्टम पे इंस्टॉल कर ले, पर्सनल सिस्टम पे इंस्टॉल कर ले. इट मींस जो सॉफ्टवेयर आपको गिवन है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर योर एम्प्लॉय सिस्टम, जहाँ पे काम कर रहे हो उस सिस्टम के लिए आपको कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मिला. लाइक यहाँ पर हम एंटीवायरस की बात कर रहे हैं तो वो एंटीवायरस आप अपने पर्सनल सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं कर सकते. तो ओनली द व्हाइट लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर शुड बी अलाउड, नो अदर सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर. तो इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर आप लोग को मिल रहे हैं, ठीक है, वो आप उसी सिस्टम पे इंस्टॉल करो, ना कि अपने पर्सनल यूज. So this is all about the types of policies. So next we have email security. So before the start of email security, I'm going to launch the next poll question. थर्ड पोल क्वेश्चन जो है वो मैंने लॉन्च कर दिया है. तो करिए स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी इसको अटेम्प्ट करिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली दोनों क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड अपॉन द टेलनेट. जो अभी हम लोग टॉपिक भी पढ़ रहे थे, जो पॉलिसीज हम लोग लगा रहे थे, उसमें हमारे पास पॉलिसीज आई थी जो रिलेटेड टू टेलनेट थी. First question is telnet is general purpose for what, that is based upon the client server application program. So जो आपका करेक्ट आंसर है वो सब ने यही करेक्ट आंसर दिया है, सबका ठीक है. इसमें ये शायद फर्स्ट टाइम है सबका जो पोल का क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट ही है और करेक्ट आंसर है सबका, 100% है. सो सेकंड क्वेश्चन जो था आपका उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को शायद हुई है. क्वेश्चन था द एडमिनिस्ट्रेटर wishes to manage a network through telnet from a user terminal to a router. So यहीं पे सबकी जो है वो जो गड़बड़ हुई है, आप लोगों ने शायद जल्दबाजी में नहीं ठीक से किया. telnet from a user terminal to a router, how can this be achieved? So correct, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन थी, a connection should be established between the ethernet port of the terminal. यहाँ तक दोनों ऑप्शन सेम है. Access should be established between the ethernet port of the terminal and the first that is console port to the router and ethernet port to the router. So correct answer इसके पास जो हमारा है वो है B part, ethernet port to the router. Okay. So next, that is email security.
So basically email security ठीक है, just tell me, कोई मेरे को बता सकता है कि ईमेल सिक्योरिटी हमें क्यों लगानी चाहिए? व्हाट इज द नीड ऑफ ईमेल सिक्योरिटी? होती क्या है? कैन एनीवन जस्ट टेल मी, जस्ट रेज योर हैंड. Yes, Akriti. सर बेसिकली जैसे अभी पोल में भी क्वेश्चन आया था कि अगर हम कुछ ईमेल खोल लेते हैं तो मलेशियस अटैक हो सकते हैं, की लॉगर हो सकता है उसके अंदर, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है. यस, अर्शदीप कौर. यस सर. यस, बताओ क्यों सिक्योरिटी जरूरी है? सर क्योंकि जो दूसरी ईमेल्स होती हैं उसे सेपरेट कर सकें, बिकॉज कईयों में हो सकता है ना कि कोई कोई फाइल ऐसी हो जिसमें हमारा डाटा फेच कर लें. ठीक है, ठीक है. ये यस, अभिनव. सर अपनी ईमेल्स के कंटेंट्स को और अकाउंट्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए. ये भी ठीक है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो हमें नहीं देना चाहिए. अगर आप और दे रहे हैं दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इसको मतलब किसी भी अगर कोई गलत मतलब लिंक ही आ रहा है, जैसे पोल में क्वेश्चन आया था, मैलिशियस कंटेंट वगैरह से बचाने के लिए. और समटाइम आप लोग खुद भी देखते हो कि आप जब भी कोई अटैचमेंट भी आप लोगों को मिलती है, कोई अटैचमेंट भी आप लोगों के पास आती है, तो उसको गूगल भी स्कैन करता है. अगर आप गूगल क्रोम कर रहे हो, जीमेल से कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो, तो जीमेल से अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो बिफोर डाउनलोडिंग वो फाइल पहले वो स्कैन करता है. स्कैन होती है फाइल के कहीं उसके अंदर कोई आपने कोई बैच फाइल तो नहीं क्रिएट एम्बेड की, जैसे आप लोगों ने लैब में किया था, इमेज के बैकग्राउंड में नोटपैड की फाइल एम्बेड की थी. तो वो नोटपैड की फाइल कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल भी हो सकती है कि विदाउट यूजर परमिशन वो भी इंस्टॉल हो सकती है. तो इसलिए हमें जो है ईमेल सिक्योरिटी जो है वो मैंडेटरी है और जरूरी है, हमें लगानी चाहिए. So email security, it describe various techniques that should keeping sensitive information in email communication and that accounts secure against unauthorized access. So email is a popular medium, yes, popular medium for the spread of malware. ये आप लोगों को पता है, whether it is malware, spam, phishing attack. ठीक है, तो उस केस में करना क्या है? सिर्फ सिंपली एक अटैचमेंट ही तो करनी, एक अटैचमेंट अटैच की और आपको साथ में भेज दिया. अगर आप फिशिंग की भी बात करते हैं तो फिशिंग आप लोगों ने ग्लोबली फिशिंग की थी, और जब आप लोगों ने ग्लोबली फिशिंग की थी तो उस केस में यू जस्ट क्रिएट वन लिंक. आपने कोई एक लिंक क्रिएट किया था, वेदर वो जीमेल का था या फेसबुक का था, किसी भी XYZ कोई भी वेबसाइट जो है, इंस्टाग्राम हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी है, कोई भी आप उस केस में उसका क्रिएट कर रहे हो और आप उसको अटैचमेंट के साथ अटैच करके किसी को सेंड कर देते हो. तो आप सिंपली कहते हो कि जो लिंक है इसको आप लोग लिंक को यूज करो, देन यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सिलेबस, इंफॉर्मेशन अबाउट आवर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट आवर नेक्स्ट क्लासेस, इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट जॉब्स या कोई कंपनीज की जॉब, कोई कंपनीज के पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, वो किसी भी मेथड के थ्रू आप लोग जो है जिस तरीके से आप नेक्स्ट पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हैं. जो अगर स्टूडेंट्स को कर रहे हैं वो अट्रैक्ट हो सकते हैं इंटर्नशिप से, अट्रैक्ट हो सकते हैं जॉब से, अगर वो फाइनल ईयर के अट्रैक्ट हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स आप दे रहे हो कि जिसमें आप बोल देते हो कि इसमें प्रैक्टिकल पार्ट के साथ साथ कंप्लीट एग्जीक्यूशन भी है, जो भी टॉपिक है उनके साथ एग्जीक्यूशंस भी है, तो वो कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, so next we have need of
email security. So need क्यों नीड है, क्योंकि इट्स अ पॉपुलर है जिसके थ्रू आप लोग कोई भी डेटा एक्सचेंज कर सकते हो. तो हम इसको कह सकते हैं कि ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ ईमेल एज एन अटैक वेक्टर, so it is critical that enterprise and individual takes measure to ensure their email account against common attack as well as the attempt as unauthorized access to account or communication. So malware sent via email message can be quite descriptive. So phishing email sent to employee often contain malware in attachment that designed to look like the document or include hyperlinks that leads to websites that serve malwares. Opening an email attachment or clicking on a link in an email, it can be all that it takes for account or device to become compromised. So this is the reason कि आप लोगों को जो हमें email security की जो है हमें जरूरत है. So email security policy. So next question is email security policy. Basically होती है one thing we always recommend when drafting a corporate email security policy is to have a policy that related to a phishing email. So a phishing security policy can help to highlight how to report and forward on phishing and how the rest email to the security team as well as list of employees जो भी आपके पास है expectations है. So setting clear routes of communication that allow everyone to stay safe and on the same page. So next we have email security best practice. So इस केस में क्वेश्चन ऐसे दिया था, what are the email security best practice? So these are the two level of email securities or best practice. First one is enterprise email security best practice and end user email security best practice. So, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट, चलो इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं. तो ये भी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो एनी डाउट यहाँ तक के लिए नीड ऑफ ईमेल सिक्योरिटी जो हमारा पेंडिंग रह जाएगा, दैट इज बेस्ट प्रैक्टिस फॉर दैट. एनी डाउट? अदरवाइज आई एम गोइंग टू लॉन्च द नेक्स्ट फुल क्वेश्चन. मैंने पूल क्वेश्चन जो है वो लॉन्च कर दिया है, तो आप इस पोल को अटेम्प्ट कीजिए. So going to share the result. So first question is an Ethernet port can work one of 3 duplex mode, whereas an optical Ethernet port only support one single mode. Which of the following represent this mode? So correct answer for this question, that is the full duplex. So second question is benefit of emails. तो अभी हम लोगों ने ईमेल नहीं पढ़ रहे थे, ईमेल सिक्योरिटी ही पढ़ रहे हैं. तो बेनिफिट इसमें क्या है, अगर आपने डेटा भेजना है किसी को, स्पीड बेनिफिट है इसकी. कॉस्ट आपको पता है सिर्फ इंटरनेट की कॉस्ट लग रही है और साथ को अटैचमेंट करने की कोई कॉस्ट नहीं लग रही. तो आज की डेट में जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो मोस्टली जो भी है, अगर किसी ने अपने मैरिज का कार्ड या कोई भी इनविटेशन सेंड करना है ड्यू टू कोविड, तो उसमें ईमेल ही कर रहे हैं, तो कॉस्ट भी बच रही है. तो इसका मतलब ये भी पॉइंट ठीक है. रिकॉर्ड कीपिंग है, रिकॉर्ड कीपिंग भी आपकी हो रही है. आपने किसको किसको मेल की तो आपके पास रिकॉर्ड रहता है.
कितने बजे मेल की, कितने बजे मेल रिसीव हुई, कितने बजे सेंड हुई, वो सारी रिकॉर्ड कीपिंग है. सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन दैट इज ऑल ऑफ द अबव. स्पीड भी है, कॉस्ट भी है, रिकॉर्ड कीपिंग भी है. जो ईमेल आपका काम करती है, तीनों काम कर रही है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज ऑल ऑफ द अबव. Okay, now I'm going to stop sharing the result. Just ask me, tell me अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो डाउट पूछ सकता है. सर मेरा क्वेश्चन सीगा एक. हाँ जी बोलो अभी. हाँ जी सर, ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ. ਗੇਮ ਸਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੇਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ. अमीन तेरी आवाज ना बहुत कट कट के आ रही, क्लियर नहीं है. मेरे ख्याल ना यस अभिनव गेम हैक की गल कर रही है. यस सर, वो गेम हैकिंग की बात कर रही है. आई थिंक वो चीट कोड्स वगैरह की बात कर रही है कुछ. हाँ तो आप लोगों ने तो ऑनलाइन पबजी करवाई थी, तो आप लोग करो आंसर अभिनव, कैसे हो सकता है फिर. So I have no idea about it. होना चाहिए, आप लोगों ने ऑनलाइन करवाई. यस मोहित. सर मोस्ट उसके चीट कोड्स वगैरह होते हैं, इतना मुझे पता है. यस उसमें एक है ना मॉडिफाइड फाइल डाल देते हैं जिसमें वो उसका जो होती है ना, जैसे कि वाइट बॉडी हो गया, जैसे कलर होता है उसको पूरा वाइट कर देते हैं. या फिर ग्राफ्स का जो होता है उसका वैल्यू कम कर देते हैं, फिर दिखे ना वो गेम के अंदर. हो गया अमीन क्लियर. टू एंड द मीटिंग. ठीक है, हम मीटिंग एंड करते हैं. तो मंडे टू ऑनवर्ड आप लोगों को जैसे हमने डिस्कस किया था प्रैक्टिस क्लासेस भी साथ में चलेंगी. ठीक है, और कल जो हमारा एडिशनल है लेक्चर वो भी हम लगाएंगे. जो डाउट्स रह जाएंगे वो हम लोग कल वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर. अपना ध्यान रखो, अपना अपनी फैमिली का सेहत का ध्यान रखो. अटेंडेंस आप जैसे आज का लेक्चर आप लोगों ने थोड़ा सा अच्छा इंटरेक्टिव लगाया, तो कोशिश करो सभी सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही आप लोग इंटरेक्टिव सा ही सेशन लगाओ. स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय.